Good morning, everyone. Today, I would be starting with you the another next part of sequencing problem. Earlier, we were doing questions where there were n jobs, but there were two machines. That is only machine A and machine B. Now I'm going to be solving with you question where there would be n jobs like A, B, C, D, E, F, or you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6 n jobs and 3 machines. Okay, could be machine A, B and C. Now, before starting with this part, I would like to draw your attention towards some of the conditions for 3 machine sequencing. That means like we used to find out the optimal sequence कि किस order में हम job को process करेंगे. उस order को find करने से पहले, in case of 3 machines given in the question, we have to go through these 2 conditions. ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है आपकी? मिनिमम टाइम ऑफ ए, मतलब सबसे कम टाइम ए मशीन का शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए. शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ बी मशीन, जो सबसे ज्यादा टाइम बी मशीन का होगा. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं. पहली कंडीशन है आपकी minimum time of A machine should be greater than or equal to maximum time of B machine. ठीक है, this is the first condition. Second condition है आपकी minimum time of C machine, सबसे कम टाइम C मशीन का should be greater than equal to, ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए किसके? maximum time of B machine. ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों का सेम है. सो दीज 2 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इफ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, आपने क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी, तो वी आर गोइंग टू डू अ मेथड. ठीक है, जो मैं आगे अभी क्वेश्चन में बताऊंगी वो मेथड लगेगा. अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इधर 1 इज सेटिस्फाइड और इधर 2 इज सेटिस्फाइड. ठीक है, या तो ए पहली हो रही है या दूसरी हो रही है, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो रही है, तो भी आप क्या करेंगे, यही वाला मेथड लगाएंगे जो मैं ऊपर बताऊंगी. और ये मेथड्स हम देखेंगे अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में. सो जस्ट कॉपी दिस वेरी नाइसली इन योर कॉपी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द क्वेश्चन इज विथ n जॉब्स एंड 3 मशीन्स आर गिवन. As I shown you this entire conditions, okay, now I'm starting with this question. Okay, now before starting the question, I'm just reading it out for you. You are given the following data regarding the processing time of some jobs on 3 machines. 3 machines are A, B and C. The order of processing is A, B, C. ठीक है, दैट मीन्स पहले कोई भी जॉब मशीन ए करेगा, फिर वो मशीन बी को ट्रांसफर करेगा एंड फिर मशीन बी ट्रांसफर कर देगी सी को. डिटरमाइन द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब. ऑल्सो इवेल्युएट द टाइम ऑफ ए, बी एंड सी एज एन आइडल टाइम. ओके, सो द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस. Jobs are given in Roman numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. That means there are 7 jobs. Now there are 3 machines, machine A, B and C. Time in hours and time in hours. So machine A के time in hours है 3, 8, 7, 4, 9, 8, 7. Machine B का time in hours is 4, 3, 2, 5, 1, 4, 3. Machine C के time in hours is 6, 7, 5, 11, 5, 6 and 12. You can have a look of the question again. Okay, now I'm starting with the solution. Okay, now for solution, as you know, we have 7 jobs, that is n jobs are 7 here, which are required to be processed from 3 machines. ठीक है, 3 machines इन 7 जॉब को प्रोसेस करेंगी.
A, B and C. A, B and C in the order. A is going to process any job first, then it will give to B, and then B machine will give to C. Okay, we are required to select optimal sequence. हमें वो sequence select करना है जिसमें हम jobs करेंगे ताकि where total elapsed time is minimum, कम से कम हो, and ideal time of machine is less. Okay, now as here in the case where we have n jobs, that is 7 jobs and 3 machines, that is A, B and C. So before finding the optimal sequence निकालने से पहले हमें कुछ एक conditions चेक करनी है, जो conditions मैं already पिछली वीडियो में आपके संग डिस्कस कर चुकी हूँ. तो conditions क्या थी? पहली condition, और ये condition सिर्फ 3 मशीन के केस में ही लगेंगी. This is very important to be noted. Okay, only when in question there are given 3 machines, only then you are going to put these conditions. पहली कंडीशन आपकी है मिनिमम टाइम ऑफ ए मशीन. सबसे कम टाइम ए मशीन का शुड बी ग्रेटर देन, ज्यादा होने चाहिए और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ बी मशीन. ओके, नाउ वी विल सी इन द क्वेश्चन minimum time of A. As you can see here, this is your A machine. इसमें सबसे कम minimum time is 3 hours. Okay, so I have written here 3 hours. ठीक है, अब इसके बाद अभी ये साइन इग्नोर करिएगा. नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम टाइम ऑफ B. सो अगेन वी आर गोइंग टू सी हियर मशीन B में मैक्सिमम टाइम आपका क्या है? एज यू कैन सी इट इज 5 आवर्स मैंने यहां पे लिख दिया है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर हमारी कंडीशन क्या थी? मिनिमम टाइम ए का कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए ऑफ मैक्सिमम टाइम ऑफ बी. बट आप इधर देख सकते हैं ये 3 आवर्स मिनिमम टाइम है ए का और मैक्सिमम टाइम बी का 5 आवर्स है. तो ये 3 आवर्स तो लेस है 5 आवर्स के. इट इज लेस, दैट मीन्स आवर फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो वी विल चेक द अदर कंडीशन. ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? मिनिमम टाइम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम टाइम ऑफ बी. तो पहले हम देखेंगे मिनिमम टाइम सी का कितना है फ्रॉम द क्वेश्चन. नाउ मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी मशीन ये है हमारे पास. आप देख सकते हैं इसमें सबसे कम टाइम 5 है. देयर आर 2 5s गिवन. ओके, सो हमें एक ही लिखना है तो हम ये या ये कोई भी 5 चूज कर सकते हैं. सो 5 आवर्स आई हैव रिटन हियर 5 मिनिमम टाइम ऑफ सी. अब हमें दूसरा क्या चेक करना है? मैक्सिमम टाइम ऑफ बी. बी का मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा टाइम इज 5. सो आई हैव रिटन हियर. ठीक है, 5 आवर्स. नाउ यू कैन सी इट शुड बी आइदर ग्रेटर देन, ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए. तो यहां पे 5 आवर्स इज इक्वल टू 5 आवर, हेंस इट इज इक्वल. दस वी कैन से सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. हमारे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने नोट लिखाया था कि या तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. इधर हमारा पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. इट इज नॉट सेटिस्फाइड. दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन. बट यू कैन सी हियर आवर सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ओके, सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सो as one of the two condition is satisfied, so now we will reduce 3 machines to 2 machine. अभी हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो प्रोसीजर क्या है? हम हमारी 3 मशीन को कितने में रिड्यूस कर लेंगे? ओनली टू 2 मशीन्स. ठीक है, लेकिन ये रिडक्शन सिर्फ आप ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने तक ही करेंगे. ठीक है, ओनली द मशीन्स, 3 machines are reduced to 2 only and only, I'm stressing on this word, to find the optimal sequence. Okay, now let's see. अब इसमें आपको देख लीजिए कितना टेबल्स बनाना है. तो पहले तो हम हमारा बेसिक क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे इन हाफ ऑफ द पेज. जॉब्स 1 2 3 4 5 6 7. ओके, एंड देन मशीन ए के टाइम
B के सारे टाइम एंड C के सारे टाइम. Okay, this I have copied from the question and you are supposed to copy it from the question. Okay, now with this you are going to find or convert these 3 machines to 2 machine. तो पहले मेरी machine 1 हम निकाल रहे हैं. Okay, and इसे calculate कैसे करेंगे हम? A plus B. Okay, so what we are going to do here? Okay, so machine 1 निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? A plus B. That means A, machine A plus machine B. तो पहली जॉब का कैसे निकाला है मैंने? 3 plus 4. Okay, 3 plus 4 is equals to 7. Now 7 hours are for machine 1 to do job 1. Next, 8 plus 3 got 11. 7 plus 2 got 9. 4 plus 5 again 9. 9 plus 1 10. 8 plus 4 12. And then 7 plus 3 10. So I have got machine 1 by combining A plus B. Okay, now as we were converting 3 machines to 2 machines, तो अब second machine निकालेंगे हम. second machine कैसे आएगी? B plus C. That means machine B plus C. So first is 4 plus 6, that is 4 plus 6, that is 10. 3 plus 7, 3 plus 7 again 10. 2 plus 5, 2 plus 5 7. 5 plus 11 16. 1 plus 5 6. 4 plus 6 10 and 3 plus 12 15. So now you can see these 3 machines are converted into machine 1 and machine 2. So with the help of only this, I am going to find the sequence. This you can see, and in next video I'll show you how to find the optimal sequence. Okay, now we will make another table with 7 jobs and 2 machines, that is machine 1 and machine 2, as we have calculated here machine 1 and machine 2. So with this we are going to make another table. Now you can see this. Now there are 7 jobs I've written, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, and this is machine 1 which has been made from A plus B, time in hours. I have copied it from back, which I have calculated in previous videos. 7 11 9 9 10 12 and 10. Then machine 2 which is a combination of B plus C. Okay, so again time in hours 10 10 7 16 6 10 and 15. Okay, now after converting 3 machines into 2 machines, now you're going to do the procedure which we were used to do to find the optimal sequence with 2 machines. ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन 1 में किया था मैंने स्टार्टिंग में, जब हम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे थे. अब सेम प्रोसीजर लगाना है टू फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस. अब इसमें एक क्वेश्चन आज मेरे पास आया है दीक्षा का, दैट मैम इसमें जब हम ये जॉब्स चूज कर रहे हैं तो पहले तो मैं मशीन बी का भी ले रही हूँ या मशीन 2 का भी ले रही हूँ. तो जब आप ये जॉब्स का सीक्वेंस चूज करेंगे तब आप याद रखिए आपको अभी ये ऑर्डर नहीं देखना है कि पहले ए ही मशीन आएगी फिर बी मशीन आएगी. ओके, अभी आप सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे जॉब्स का, जिसमें आप जो भी मशीन सबसे कम टाइम ले रही है पहले जॉब आप उसको अलॉट कर दोगे. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली विथ यू. एज यू कैन सी हियर, सबसे लीस्ट टाइम इस पूरे चार्ट में कौन सा है? सबसे लीस्ट नंबर, एज यू कैन सी सबसे लीस्ट नंबर इज 6. तो वी विल मार्क 6 एंड दिस 6 hours आर टेकन बाय मशीन 2 to do job 5. तो मैं जॉब 5 किसको दे रही हूं अभी? मशीन 2 को. So I'm just going to cancel it out. Why I'm canceling it? ताकि मैं जॉब 5 दोबारा किसी और मशीन को ना दे पाऊं. तो 6 hours ले रही है मशीन 2 to do job 5. So I am allotting job 5 to machine 2. तो मैं यहां पे लिख दूंगी. मशीन 2 में हमारा लिखने का तरीका होता है राइट टू लेफ्ट. सो आई एम गोइंग टू राइट 5th
job. Okay, then I'm going to make a bar. ठीक है, तो अब हमारी एक जॉब अलॉट हो गई. नेक्स्ट लीस्ट नंबर इस चार्ट में देखिए कौन सा है. एज यू कैन सी इट इज 7. अब 7 2 बार है, तो पहले मैं ये वाला 7 चूज कर रही हूं. ओके, नाउ दिस 7 hours आर टेकन बाय मशीन 1 एंड टू डू विद जॉब 1. तो जॉब 1 में किसे दूंगी, मशीन 1 को, एंड आई एम गोइंग टू कैंसल इट आउट. ठीक है, सो आई एम गिविंग दिस जॉब 1 टू आई एम गिविंग टू मशीन 1. तो मशीन 1 में जब भी हम कोई भी जॉब लिखेंगे तो हमारा लिखना कहां से होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, अगेन आई एम नाउ मेकिंग अ साइन बार. ओके, अब नेक्स्ट लीस्ट नंबर एज यू कैन सी इन दिस होल इज अगेन 7, but this time 7 hours are being taken by machine 2. So I am going to give job 3 to machine 2. Just put a bar. Okay. Now, next least number you can see here is, this is deleted. Okay, next least number is 9 as you can see. ठीक है, 9 hours are taken by machine 1 to do job 4. तो मैं 4th job machine 1 को दे रही हूं. Again I'm going to just cancel it out. I'm going to write here 4. Again I'm going to draw a bar. ठीक है, नेक्स्ट लीस्ट नंबर एज यू कैन सी इज 10. लेकिन यहाँ पे 10 आपका इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है. ये वाला तो डिलीट हो चुका, दिस इज डिलीटेड. ओके, तो पहले मैंने ये वाला 10 ले लिया. ओके, सो दैट मीन्स 10 hours आर टेकन बाय मशीन 2 टू डू जॉब 2. तो आई एम गोइंग टू अलॉट सेकेंड जॉब. यहाँ मैं सेकेंड जॉब किसको दे रही हूँ, मशीन 2 को. अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट कैंसिल इट ऑल. सो job 2 is given to machine 2. Again I'm going to make a bar here. Okay, next least number as you can see 10 is here also, so I've just marked it. And then 10 hours are taken again by machine 2 to do job 6th. तो मैं 6th job किसको दे रही हूँ, मशीन 2 को, as you can see here. I'm allotting job 6 to machine 2. Okay. Now again you can see least number out of these two is 10. ये 10 है, 10 मतलब 10 hours are being taken by machine 1 to do job 7. तो मैं 7 job किसको दे दूंगी, मशीन 1 को. And now I'm going to just, so I'm allotting 7 job to machine 1. So I'm going to write here 7. Now as you can see all are cancelled and all jobs are allotted. जब आप ये सीक्वेंस बना रहे होंगे जॉब्स का, तब आपको प्रायोरिटी ये नहीं देनी है कि पहले मशीन 1 ही करेगा. इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है. मेक इट वेरी क्लियर एट इन योर ब्रेन्स. अभी हमें ये प्रायोरिटी नहीं देनी है कि मशीन 1 ही पहले जॉब करेगा. ये ऑर्डर आप कब करेंगे, जब हम इन एंड आउट टाइम निकालेंगे. अभी आप उस मशीन को जॉब दे दोगे जिसने सबसे कम टाइम लिया है. ओके, जिसका सबसे कम टाइम गिवन है उसे आप जॉब दे देंगे. अभी आपको ऑर्डर नहीं चेक करना है. सो दिस इज माय सीक्वेंस. ठीक है, आई हैव रिटन हियर मशीन 2 हमेशा जब लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट. एंड मशीन 1 में अगर कोई जॉब देने तो लिखेंगे लेफ्ट टू राइट. ठीक है, नाउ आई कैन शो यू द final sequence also as I have written here. Optimal sequence: 1st, 4th, 7th, 6th, 2nd, 3rd and 5th. I hope you got the question clear till here. In next video I will calculate further. Now we would be calculating in and out time. ठीक है, in and out time जब हम निकालेंगे तो हम तीनों मशीन को लेकर के चलेंगे.
अब मैंने अपना क्वेश्चन पूरा अब हमें करना है. दैट मीन्स वेयर देयर वर 3 machines given. As you can see, I've written here also. Now while calculating in and out time, I would be taking all 3 machines as given in question A, B and C. हमने अपने क्वेश्चन की 3 machines जो हमें गिवन थी उसे हमने रिड्यूस किया था 2 machines तक, सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने के लिए. जैसे ही हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस हमें मिल गया, अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज इट इज गिवन इन क्वेश्चन. दिस आई एम गोइंग टू शो यू इन नेक्स्ट वीडियो. Okay, now I'm continuing this question. Calculation of in and out time. ठीक है, in and out time जब मैं निकालूंगी तो मैं आपको एक बात बता दूं. Now I would be taking all 3 machines. मैंने जो conditions लगा के 3 machines को 2 machines में convert किया था वो सिर्फ optimal sequence निकालने के लिए था. The moment I got my optimal sequence, as you can see here, I have got my optimal sequence. ठीक है, अब मैं वापस से क्वेश्चन सॉल्व करूंगी बाय टेकिंग ऑल द 3 मशीन्स. ठीक है, इन एंड आउट टाइम जब हम निकालेंगे तो हम जो ओरिजिनल क्वेश्चन में मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी दिया था, आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम टुगेदर. फर्स्ट जॉब्स, जस्ट राइट इन द सीक्वेंस विच यू हैव ऑब्टेन्ड 1, 4, 7, 6, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई वुड बी टेकिंग आउट इन एंड आउट टाइम. ठीक है, now first you can see, always remember one thing, machine A is going to start, उसका in time हमेशा 0 से start होगा. ठीक है, machine A ने out time, that means job 1 किस time पे खत्म की. Now just see it from the question. This is your question. You may turn your pages. It is completing in 3 hours. Job 1 is completed by machine A in 3 hours. So I'm going to write here 3. ठीक है, द मोमेंट ये मशीन ए ने 3 घंटे पे खत्म किया. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस इन एंड आउट टाइम निकालने में अब आप ऑर्डर फॉलो करेंगे. दैट मीन्स जो क्वेश्चन में गिवन था ना कि ऑर्डर है हमारा ए, बी एंड देन सी. दैट मीन्स कोई भी जॉब होगी वो पहले मशीन ए करेगा, फिर जब मशीन ए करके खत्म कर लेगा तब वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, मशीन बी को. एंड व्हेन मशीन बी हैज फिनिश्ड वर्किंग ऑन दैट जॉब इट विल बी ट्रांसफर्ड टू मशीन सी. ये ऑर्डर आप इसमें देखेंगे इन एंड आउट टाइम में, कैलकुलेशन में. ओके, सो अब आप देखिए जॉब 1 को मशीन ए ने 3 आवर्स पे खत्म कर लिया. तो जिस आवर पे खत्म किया अब वो किसको दे देगा, मशीन बी को. तो मशीन बी का जॉब 1 स्टार्ट करने का टाइम इज 3 आवर्स. 3 घंटे से पहले ये मशीन बी खाली था और कुछ काम नहीं कर रहा था. मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 घंटे के लिए मशीन बी आइडल था. इट वॉज डूइंग नो वर्क. 3 घंटे पे जब मशीन ए ने जॉब 1 करके खत्म कर लिया तो उसे किसी को दे दिया, मशीन बी को. ओके, नाउ मशीन बी का आउट टाइम, दैट मीन्स एट व्हाट टाइम मशीन बी कंप्लीटेड जॉब 1. दिस यू आर गोइंग टू सी फ्रॉम द क्वेश्चन. इट टुक 4 आवर्स. 4 घंटे में खत्म किया है जॉब 1 मशीन बी ने. सो 3 + 4 इज 7. ये 7 कैसा आया? आई थिंक you people are now knowing how to calculate this. 3 I have taken it from here and 4 from the question. ठीक है, मशीन सी पे अब हम आते हैं. मशीन सी भी तब तक नहीं स्टार्ट कर सकती है जब तक फर्स्ट जॉब किसने खत्म ना कर ली हो, मशीन बी ने. तो मशीन बी कितने पे खत्म कर रहा है, 7 आवर्स पे. मतलब मशीन सी को जॉब कब मिली होगी, 7 आवर्स पे. ठीक है, इन टाइम इज 7 आवर्स. तो 7 घंटे तक द मशीन सी वॉज सिटिंग आइडल, इट हैज नथिंग टू डू. तो 7 पे इसने स्टार्ट किया एंड एट व्हाट टाइम मशीन सी कंप्लीटेड जॉब 1. दिस वी आर गोइंग टू फाइंड फ्रॉम द क्वेश्चन. इट टुक मशीन सी टुक 6 आवर्स टू डू जॉब 1. So 7 + 6 is 13 hours. Okay, this is 7 + 6. 7 I have taken it from here and 6 from the question. Now let's come to job 4. अब मशीन ए ने 3 आवर्स पे जॉब 1 खत्म कर ली. तो मतलब अब मशीन ए इज फ्री एट 3 आवर्स. तो मशीन ए अब कौन सी जॉब स्टार्ट कर सकती है, फ्रॉम 3 आवर 4th जॉब. तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 3 आवर 4th जॉब एंड इसने ये 4th जॉब मशीन ए ने कितने पे खत्म की, दिस वी आर गोइंग टू सी इन द क्वेश्चन. कैन सी 4th जॉब मशीन ए टुक 4 आवर्स, 4 घंटे में खत्म की. सो 3 + 4 अगेन 7.
Can write here also 3 plus 4. This 3 I have taken it from here and 4 from the question. Now, as you can see here, when machine A finished doing job 4 in 7th hour, it transferred it to machine B. लेकिन अब हम पहले क्या चेक करेंगे, क्या मशीन B पहला जॉब करके खाली है? तो यू कैन सी 7 आवर्स पे इसने जॉब 1 खत्म कर ली, तो 7 आवर पे इसको ये 4th जॉब भी मिल रही है, तो दैट मीन्स इट कैन, मशीन बी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन 4th जॉब एट 7 आवर. तो आई कैन से 7 पे स्टार्ट किया. अब हमें ये देखना है कि मशीन बी ने किस टाइम पे जॉब 4 को खत्म किया, जैसे हम क्वेश्चन से देखेंगे. जॉब 4 मशीन बी टुक 5 आवर्स. सो 5 आवर्स, सो यू कैन सी हियर 7 plus 5 is 12 hours. ठीक है, 7 plus 5. 7 I've taken it from here and 5 from the question. Up this step is very important. As you can see, 4th job is completed by machine B in 12 hours. तो अब 4th job कौन कर सकता है? मशीन C. लेकिन as you can see here, machine C is already doing job 1 और जिसे करने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 13 आवर्स. सो यू कैन सी 12 घंटे पे मशीन सी तो फ्री नहीं है. तो जब मशीन सी आधे में जॉब 1 नहीं छोड़ेगा, तो जब मशीन सी 13 आवर्स पे जॉब 1 करके खत्म कर लेगा, तब वो कौन सी जॉब लेगा? 4th जॉब. सो आई कैन राइट हियर 13. एट 13 आवर्स इट फिनिश विद जॉब 1, सो नाउ इट कैन टेक जॉब 4 एट 13 आवर्स. 13 आवर्स पे लिया, और अब ये देखना है जॉब 4 मशीन सी कब खत्म कर रहा है. दिस वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द क्वेश्चन. इट इज टेकिंग 11 आवर्स. इट इज टेकिंग 11 आवर्स. सो यू कैन सी हियर 13 plus 11 is 24. 24. Okay. 13 plus 11. This 13 I've taken it from here and 11 from the question. Now let's come to job 7th. मशीन ए ने जॉब 4 को 7 घंटों पे खत्म कर लिया, तो अब हम कह सकते हैं कि इट कैन स्टार्ट विद जॉब 7 फ्रॉम द 7th आवर. तो इट स्टार्टेड डूइंग जॉब, मशीन ए स्टार्टेड डूइंग जॉब 7 फ्रॉम 7 आवर. ओके, नाउ हाउ मच टाइम इट टुक टू कंप्लीट जॉब 7? वी कैन सी हियर जॉब 7, it took 7 hours. So 7 plus 7 is 14. 7 plus 7. This 7 I have taken it from here and this 7 I have taken from the question. Okay. Now just see here. 14 hours पे 7th जॉब मशीन ए ने खत्म कर लिया, तो अब 14 आवर पे ये किसे दे देगा? मशीन बी को. लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मशीन बी ने अपनी जॉब 4 12 घंटों पे खत्म कर ली थी. तो अब 12 घंटे पे खत्म करने के बाद मशीन बी इज सिटिंग आइडल बिकॉज इट कैनॉट स्टार्ट विद जॉब 7 until and unless it is being finished by मशीन ए. तो मशीन ए उसे किस टाइम पे खत्म कर रहा है? 14 आवर्स पे. तो अब हम ये कह सकते हैं, हम ये वाला 14 आवर्स पे जब उसने खत्म कर लिया मशीन ए ने, तो किसको दे दिया? मशीन बी को. तो आई एम राइटिंग हियर 14 आवर्स पे मशीन बी को जॉब मिला 7th एंड एट व्हाट टाइम इट फिनिश्ड इट? वी कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन. दिस इज द 7th जॉब एंड मशीन बी टुक 3 आवर्स. सो 14 plus 3 is 17 hours. 14 plus 3. This 14 I've taken it from here and 3 from the question. Now you can see here also. Now at 14 hour machine B can transfer job 7 to machine C. लेकिन मशीन C तो अभी 17 घंटे पे फ्री नहीं है. इट इज स्टिल डूइंग जॉब 4th, और जॉब 4 इसने कब खत्म की? 24 आवर पे. तो जब ये मशीन C 4th जॉब 24 आवर पे खत्म करेगा, तब ये कौन सा जॉब लेगा? 7th जॉब. तो अब आप यहाँ पे ये वाला 24 लिखेंगे. ओके, दिस 24. सो वंस मशीन सी कंप्लीटेड विद जॉब 4, इट टुक जॉब 7. तो 24 आवर्स पे स्टार्टेड एंड एट व्हाट टाइम मशीन सी कंप्लीटेड जॉब 7? दिस वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द क्वेश्चन. इट इज टेकिंग 12 आवर्स. सो 24 plus 12
24 plus 12. This 24 I have taken it from here and 12 from the question. So this would give you 36 hours. Okay. Okay, you got it, 36 hours. ठीक है, अब मैं इस पे आती हूँ. Now job 7 हो गया, job 6. Job 6 now you can see machine A would be starting with job 6 when it completed job 7. Job 7 कब complete की? 14 hours पे. तो 14 hours पे it started with job 6. ठीक है. अब job 6 खत्म कब की इसने? This we are going to see from the question. 8 hours it took. So 14 plus 8 is 22. 14 plus 8. ठीक है, as you can see. Now at 22 hours it transferred job 6 to machine B. But machine B तो 17 ही घंटे पे फ्री था job 7 खत्म करके. ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक जॉब 6 पूरी तरीके से मशीन ए प्रोसेस करके खत्म नहीं कर लेता. तो मशीन ए ने प्रोसेस कब खत्म की? जॉब 6 की 22 पे. सो देन एट 22 आवर्स इट गेव टू मशीन बी. तो 22 आवर्स पे मशीन बी ने स्टार्ट की जॉब 6 करना. और कितना टाइम लगा इससे? 4 आवर्स. ओके, सो 22 प्लस 4 इज 26. 22 प्लस 4. This 4 I have taken from the question and 22 मैंने यहां से लिया. अब 26 आवर्स पे मशीन बी जॉब किसको दे देगा? मशीन सी को. लेकिन आप ये देखिए मशीन सी क्या 26 आवर्स पे फ्री है जॉब 6 करने के लिए? नहीं. इट हैज स्टिल डूइंग टिल 36 आवर्स विद जॉब 7. तो जब ये 36 आवर्स पे जॉब 7 खत्म कर लेगा तब ये जॉब कौन सी ले लेगा? 6 job. तो I'll say at 36 hours when it finished doing job 7 it took the job 6. और इसने कितना टाइम लिया जॉब 6 को खत्म करने में? This we'll see from the question. It took 6 hours. Okay. So 36 plus 6, I think it's 42. 36 plus 6. Okay. 36 I've taken it here, 6 from the question. Now let's come to the second job. Machine A completed doing job 6 at 22 hours. So at 22 I can say it started with job 2. ठीक है, started with job 2. and machine A ने job 2 कभी खत्म की? 8 hours के बाद. तो 22 plus 8 is 30. 22 plus 8. 22 मैंने यहां से लिया and 8 from the question, it is 30. 30 पे it gave the job to machine B. लेकिन machine B तो फ्री कब से? 26 hours पे, because 26 hours पे it has done job 6. Now it can do another job but it cannot do until and unless job 2 is being fully processed by machine A. और machine A कब खत्म कर रहा है job 2? 30 hours पे. तो 30 hours पे machine B को उसने दिया and machine B started from 30 hours. And how much time machine B took to complete job 2? It took 3 hours. Okay. So 30 plus 3 is 33. 30 plus 3. This 30 I've taken it from here and 3 from the question. Now you can see at 33 hours machine B completed job 2 and now it can transfer job 2 to machine C. But 33 hours पे machine C फ्री नहीं है जॉब 2 करने के लिए, क्योंकि ये 42 आवर्स तक कौन सा जॉब कर रहा है? 6th जॉब. सो जब 42 आवर्स पे ये 6th जॉब करना खत्म कर लेगा तब ये कौन सी जॉब लेगा? 2nd जॉब. तो 42 आवर्स पे when it finished doing job 6th it started with job 2. And at what time it completed? This we can see from the question. 7 job. 42 plus 7, 49. 42 plus 7. This 42 I've taken it from here and 7 from the question.
नाउ लेट्स कम टू द थर्ड जॉब. थर्ड जॉब, अब आप थर्ड जॉब देखिए. मशीन ए जैसे ही उसने सेकेंड जॉब 30 आवर्स पे खत्म की, इट टुक जॉब 3. 30 पे स्टार्टेड एंड एट व्हाट टाइम मशीन ए कंप्लीटेड जॉब 3? 7 hours it took. So 30 plus 7 is 37. Okay. 30 plus 7. Okay. 30 I've taken it from here, 7 from the question. Now at 37 hours job 3 was transferred by machine A to machine B. ठीक है, लेकिन अब आप देखिए पहले तो मशीन 2 फ्री हो गई थी 33 आवर्स पे. So but it cannot start with job 3 until and unless job 3 is fully completed by machine A. Machine A is completing job 3 at 37 hours. तो 37 hours पे machine B started working on job 3 and how much time it took to complete it? It is taking just 2 hours. Okay. So 37 पे मैंने 2 ऐड कर दिया तो कितना आया? 39 hours. 37 plus 2. ये 2 मैंने क्वेश्चन से लिया, 37 from here. Now 39 hours पे job 3 was finished by machine B and it transferred it to machine C. But machine C 39 hours पे फ्री नहीं है job 3 करने के लिए, क्योंकि ये 49 hours तक job 2 कर रही है. Okay, as you can see, so machine 2 जब जब machine C, you can see machine C 49 hours पे job 2 खत्म कर लेगी, तब ये कौन सी job लेगी? थर्ड जॉब. तो 49 hours पे it started doing job 3. Now at what time it completed it? This we are going to see from the question. Third job, it took 5 hours to do it. ठीक है, तो 49 plus 5 is 54. 49 plus 5 is 54. 49 I've taken it from here and 5 from the question. Now last job, fifth job, machine A completed job third in 37 hours. So from at 37 it can take job 5. And at what time machine A is completing job 5? 9 hours. Okay. So 37 plus 9 is 46. 37 plus 9. So 37 plus 9 I've taken from the question. Now 46 hours पे जॉब 5 मशीन ए ने खत्म करके किसे दे दी? जॉब मशीन बी को. लेकिन मशीन बी तो फ्री कब से? 39 आवर्स से. लेकिन ये स्टार्ट नहीं कर सकती जॉब 5 अंटिल एंड अनलेस जॉब 5 इज कंप्लीटेड बाय मशीन ए. ठीक है, तो अब मशीन ए ने 46 पे जॉब किसको दे दी? मशीन बी को. तो इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन जॉब 5 एंड हाउ मच टाइम इट टुक टू कंप्लीट जॉब 5? Just 1 hour. Okay, so 46 plus 1 is 47. 46 plus 1, that is 47. 47th hour पे machine B gave job 5th to machine C. लेकिन आप ये देख सकते हैं कि machine C 47 आवर पे फ्री नहीं है, क्योंकि वो 54 आवर्स ले रही है जॉब 3 को खत्म करने में. तो जब 54 आवर्स पे उसने जॉब 3 खत्म की, तब उसने कौन सी जॉब ले ली? जॉब 5. ओके, नाउ द मोमेंट इट टुक जॉब 5, अब हम देखेंगे कब उसने खत्म की मशीन सी ने. 5th जॉब मशीन सी इज टेकिंग 5 आवर्स. सो 54 प्लस 5 इज 59. 54 plus 5 is 50 and 54 I've taken it and 5 from the question. Now this we have calculated the in and out time. You can have a view of it again, but always remember one thing, जब मैं in and out time हम calculate करेंगे तब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या होगा. पहले मशीन ए करेगा जॉब, फिर जब वो खत्म कर लेगा तब मशीन बी करेगा, मशीन बी जब खत्म कर लेगा तब वो मशीन सी को देगा. बीच में आप भले ही मशीन बी या सी कोई भी खाली भी हो जाए तो भी वो जॉब नहीं ले सकते हैं. द ऑर्डर इज फॉलोड हेयर इन एंड आउट. ठीक है, टाइम जब हम कैलकुलेट करेंगे. दिस इज टू बी रिमेंबर्ड. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस क्वेश्चन अहेड. Now I will be continuing this previous question here. Here we are going to calculate the ideal time. Okay, so just make the chart from the previous where jobs are written in sequence: first, fourth, 7th, 6th, 2nd and 3rd and 5th.
and just make this empty chart, machine A, machine B, machine C, in and out time. Here you're not going to write the working notes which we have shown in previous table. Now you can see here, machine A started the job at 0 hour and completed job 1 in 3 hours. So the moment it completed with job 1, it started with job 4, 3 hours पे, so it is not idle. Again, फोर्थ जॉब करा उसने खत्म 7th आवर पे, एंड एट 7 इट स्टार्टेड विद जॉब 7, सो अगेन इट इज नॉट आइडल. अगेन यू कैन सी it finished job 7 in 14 hours, and the moment it finished with job 7, it started with job 6 at 14 hours. So it is no idle. It's sitting not idle. Again, you can see the moment it finished with job 6 at 22 hours, starting with job 2 at 22 hours. So it is not idle. No idle. Okay. The moment it completed job 2nd at 30 hours, it's starting with job 3 at 30 hours. Again, no idle. Okay, the moment it finished job 3 at 37 hour, it started with job 5 at 37 hour. Again, it is no idle. Okay, but I have always told you machine A would be idle, and it is calculated as last out time of machine C and last out time of machine A. So I have written here, you can see ideal time of machine A, last out time of machine C, because there are 3 machines, तो हम यहाँ पे last machine को पहले लेंगे. last machine is C machine. C machine का last out time is 59 hours. ठीक है, so 59 hours minus last out time of machine A. last out time machine A का कितना है? 46 hours. So 59 hours minus 46 hours, that is 13 hours is the ideal time of machine A. And when we are talking about the total elapsed time, the total elapsed time, जो last out time होगा of machine C का of doing the last job, that is 5th job, is 59 hours. So 59 hours is your total elapsed time, 59 hours. Okay. Now let's see the ideal time of machine B. Machine B sat idle for 3 hours. Again, this is very important. आप खुद सोचिए, जब तक मशीन A पहला जॉब खत्म नहीं कर लेता, तब तक वो मशीन B को नहीं देगा. तो मशीन B 3 घंटे पे ही जॉब 1 स्टार्ट कर पाया, तो तब तक 3 घंटे के लिए मशीन B वॉज सिटिंग आइडल. ठीक है, अब उसने 3 आवर्स हमने लिख लिया, पहला हमारा आइडियल टाइम है ये, 3 आवर्स के लिए आइडल था मशीन बी. अब देखिए 7th आवर पे इसने फर्स्ट जॉब खत्म की, एंड 7th आवर पे स्टार्टिंग विद द 4th जॉब. सो वी कैन राइट हियर नो आइडल. ठीक है, अब देखिए, अब इसने जॉब 4 खत्म कब की? 12 आवर्स पे, बट इट वॉज एबल टू स्टार्ट जॉब 7th एट 14 आवर्स. तो 2 घंटे के लिए हम ये कह सकते हैं इट वॉज सिटिंग आइडल, 2 आवर्स आइडल. ठीक है, 17th आवर पे इसने खत्म की जॉब 7. ठीक है, 17 आवर्स पे इट कंप्लीटेड जॉब 7, एंड इट स्टार्टेड विद जॉब 6 at 22 आवर्स. सो हियर ऑल्सो इट सैट आइडल फॉर 5 आवर्स. 5 आवर्स के लिए ये आइडल था. ठीक है, फिर आप देखिए 26 पे इट कंप्लीटेड जॉब 6th, बट इट स्टार्टेड विद जॉब 2nd at 30 आवर्स. सो वी कैन राइट हियर आइडल फॉर 4 आवर्स. 4 आवर्स तक ये खाली था. ठीक है, लास्ट देखिए 33 आवर्स पे इट कंप्लीटेड जॉब 2nd, बट इट स्टार्टेड विद जॉब 3 at 37 आवर्स. सो इट वॉज आइडल फॉर 4 आवर्स. And last at 39 it completed job 3, but it started with job 5 as 46 hours. So idle for 7 hours. ठीक है, and last में अब देखिए आप, लास्ट में 59 आवर was the last out time of machine C, and last out time of machine B is 47 hours. तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? 12 आवर्स का. सो अगेन फॉर 12 आवर्स मशीन बी सैट आइडल. नाउ यू कैन सी 3 + 2 + 5 + 4
plus 4 plus 7 and plus 12. 3 hours plus 2 hours plus 5 hours. 3 hours plus 2 hours plus 5 hours plus 4 hours plus 4 hours plus 7 hours plus 12 hours. ये 12 hours कैसे है? Last out time of machine C, that is 59. You can say machine C last out time is 59 minus last out time of machine B. Machine B का last out time is 47. तो difference is 12 hours. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 12 भी ऐड किए, इन सबको ऐड करके 37 आवर्स के लिए मशीन बी वॉज सेटिंग. नाउ हियर आई एम गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग विथ यू आइडियल टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मशीन सी. सो एज यू कैन सी जॉब 1 was started at 0 hour by machine A and it completed at 3 hours. जब इसने ख़त्म कर लिया मशीन ए ने जॉब 1, तो इसने किसको ट्रांसफ़र कर दी? मशीन बी को. तो मशीन बी ने 3 आवर्स पे स्टार्ट की, मतलब 3 घंटे तक ये खाली थी मशीन. ठीक है, एंड देन इट फिनिश्ड इन 7 आवर्स डूइंग जॉब 1. 7th आवर पे इसने ट्रांसफर कर दी जॉब 1 मशीन बी ने मशीन सी को. तो 7th आवर पे मशीन सी स्टार्टेड वर्किंग जॉब 1. तो इट सैट आइडल फॉर 7 आवर्स. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ठीक है, 7 आवर्स पे आइडल थी. फिर इसने खत्म की जॉब 1 एंड 13 आवर्स. 13th आवर पे जैसे ही जॉब 1 खत्म किया, इट स्टार्टेड विद जॉब 4. सो नो आइडल, इट वॉज नॉट आइडल. अगेन यू कैन सी इट completed job 4 in 24 hours and from 24 hours it started with job 7. So again it is no idle. Okay, at 36 hour it started finished job 7th and it started with job 6th. Again no idle. It finished job 6th in 42 hours and started with job 2nd at 42 hours. So again it is no idle. Again it finished job 2 at 49 hours and it started with job 3 at 49 hours. So again it is no idle. Okay. Now it finished job 3 in 54 hours and started with job 5 at 54 hours. So again no idle. So you can see here machine C was idle only for 7 hours in the beginning and thereafter it was not idle. So we can write here idle time of machine C is 7 hours only. You can have a glimpse of the total elapsed time was 59 hours when all the jobs were completed by all the machines. Machine C का last out time 59 hour will always be the total elapsed time. Idle time of machine A हमने ये कैलकुलेट कर लिया. मशीन ए कभी भी आइडल नहीं थी, लेकिन लास्ट में 59 आवर्स लास्ट आउट टाइम ऑफ मशीन सी माइनस लास्ट आउट टाइम ऑफ मशीन ए. ठीक है, तो 59 minus 46 gave you 13 hours and idle time of machine B we have already calculated 3 hours plus 2 hours plus 5 hours plus 4 hour plus 4 hour plus 7 hour and plus 12 hours. यहाँ पे भी ये सारा तो हमने कैलकुलेट कर लिया है. एंड लास्ट में 59 hours लास्ट आउट टाइम ऑफ मशीन C माइनस लास्ट आउट टाइम ऑफ मशीन B 47, दैट विल गिव यू 12 hours. ठीक है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड किया 37 आवर्स एंड आइडियल टाइम फॉर मशीन सी वॉज ओनली 7 आवर्स. सो दिस वॉज द एंटायर क्वेश्चन. प्लीज सॉल्व इट इन योर कॉपी एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट डू आस्क इट. थैंक यू.